Mrs. Ruby Bala. A big round of applause from everyone who has been working or been with her forever. It takes immense pride and pleasure for us to be celebrating her excellent service of 27 years with all you. Taking this moment to reflect on her journey of dedication, hard work, and at times hardships, but yet be always happy and joyful. She started off her journey from taking private tuitions at home to to traveling daily far locations, hopping buses to working late night, just doing her administrative tasks also for the job. But never came a time she said she wanted to quit. All just for one reason, and that was her passion for teaching. From far it looks the most easiest job to be a teacher, as the job ends in the afternoon. But for my mommy, her duty never ends. She would attend students' call any time of the day, just to extend that extra support to make them feel at ease. I remember once she invited her whole class to home. Well, you know how she loves to host everyone. And she kept saying, Mere bacche are coming. And we were like, no, you just have 2 kids. And she would still say, no, you all are my kids. I teach them and love them as I would you to you. And that how she was always so caring and giving. There are so many dimensions to her as a teacher to support her students in studies, finance, and mental well-being. And through all her time at school, she only brought back positive vibes at home. Always so happy and full of life. I cannot even put words to just describe how wonderful she is in every role of her personal life. Be it a perfect mom, a perfect wife, perfect daughter, and perfect daughter-in-law. Well, that's our mommy for you. She is a spiritual soul, always smiling and being at peace through thick and thin. I remember once in my school we were asked if both our parents are working and do we feel any odd about it? And very proudly I stood up with a very few others and had immense pride. And I still till date we all carry the same pride because mommy had the grit to pursue her passion even till then and from till now. This could have been possible with the support of our father, Mr. Satish Kumar. A big round of applause. Well, that is something he has been doing very good at his role. He would till date rush to get her school forms printed early in the morning as well. And it's just because he loves her being so happy doing her thing. And the learnings and the support shared by our Nana Nani and Dada Dadi who always held pride in her being their daughter. Like any daughter, we always do say, if we ever become 1% of our mommy in our life, we will actually consider ourselves succeeded. I know she will continue to spread her infectious smile and positive vibes. And not taking a minute away to her charm here, we would like to call mommy on the stage. Yay. Love you. Thank you, Nanny. मेरी सबसे प्यारी और सिर्फ मेरी सना। Grandmothers make the environment a little softer, a little kinder, and a little warmer for us. Good afternoon to one and all present over here. Today, we all have gathered here to celebrate for a cause that is my Nani's retirement. In the honor of 27 years legacy of service, I want to pay a gratitude to my lovingly Nani for as she treated me like her best friend. So, I want to thank my Nani for being not only a best friend for me, but also for an unpaid tutor. I know that all Nanis are exceptional, but my Nani is the best. So let me share few endearing qualities of her. Wait, okay? My Nani is no ordinary Nani. She is my partner in crime. Sometimes when we get bored, we both cook disastrous food items together and also watch new web series on television.
We both have very sweet memories playing nostalgic games like Ludo and Snakes and Ladders. I and my Nani even study together, and she is the one who tutors me and makes me learn hard topics, that too easily. For example, she is always serious about the multiplication tables, though I haven't learned them still. She even convinces my mama to let us have more fun by watching new movies together or going to the rooftop for a walk. My Nani treats me like her bestie. It is my luck that my Nani's and my birthday fall on the same date, that is 20 December. My Nani is an all-in-one mini calculator, a teacher, a responsible grandmother, an unpaid tutor, a best friend. I'm lost for words. At last, I just want to congratulate Nani for her retired life, and I expect you to be naughtier now so that we can have more fun. Love you, Nani. Please Nelly कभी कूदिए. Thank you, Sana. Very Sana. Really, so lovely. Thank you. सब तो पहलों खास करके सारे स्कूल स्टाफ, मेरे सत्कारयोग और मेरी छोटी भैन जी, मैडम खुशदीप कौर जी, प्रिंसीपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर, समूह आदर्श नगर का स्टाफ, और खास करके मैं सब तो ज़्यादा रिनी हाँ अपने बड़े भाजी श्री जे.के. मल्होत्रा जी का, श्री अश्विनी चड्डा जी का और पवन मल्होत्रा जी का, जिन्हों का हमेशा ही मेरे सिर के उत्ते भरावां तो कि प्योवां तो वध के भी साथ रहिंदा साडे दोवां दे उत्ते। बहुत माण वाली गल है साडे लई, बहुत मैनूं प्यार मिलता है इन्हां वल्लों। और अज मैनूं बड़ी खुशी वाली गल है कि 27 साल की अपनी जॉब नूं कंप्लीट करदे होया मेरी लाइफ पार्टनर अपनी एक नवी लाइफ नूं शुरू फिर करने वाली है। बहुत मैं भावुक भी हाँ और बड़ा संजीदगी के नाल भी कह रहा। मैनूं हुणे भैन जी ने कहा सीगा, सिमरपाल जी ने, कि तुसीं इन्हां नूं संभाल के रखियो। भैन जी तुहानूं मैं सच गल दसां, इन्हां ने मैनूं संभाल के रखिया है। बड़ी छोटी जी मैं गल अपनी मन की कह देना चाहुंदा कि मेरी ना 19 सितंबर 1988 लगन का समा 2:13 दोपहर का मेरी लाइफ उत्थों ही शुरू हुई सी। और यकीनन तौर के उत्ते जो पॉजिटिविटी रूबी दे विच है, शायद ही मैं इस करके नहीं तारीफ कर रहा कि वो मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ है, तो मैं तद तारीफ करन दिया। या कई बार की होंदा कि रिटायरमेंट पार्टी के उत्ते मोस्टली की करते कि असी जिहड़ा कोई रिटायर हुंदा ना उहदी असी तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन तारीफ नहीं, यकीनन तौर के उत्ते जे मैं अज कुछ बन सकिया या मेरे बच्चे कुछ बन सके हैं तो सिर्फ मेरी रूबी की बदौलत। मैनूं याद है कि मैं ना जो मेरी शादी होनी सी ना, तो मैं अपने फादर साहब को कहा सीगा कि मैं ना जिहड़ी भी लड़की देखण जानी है ना, मैं उत्थे ना नहीं करके आनी, चाहे वो किदां दी भी होए, मैं उत्थे हाँ ही करके आनी है। तो एट द स्पॉट मेरे फादर साहब को 2 रिश्ते आए सीगे मेरे वास्ते, और मैनूं उन्होंने कहा जी हुण तुसीं डिसीजन करना। तो मैं ना दोनों का हॉरोस्कोप लैके पंडित जी के पास चल गया। तो पंडित जी ने ना मैनूं कहा जी गल इदां जी कि दोनों के 28 गुण मिलते हैं, दोनों ही बड़े अच्छे ने, दोनों ही अच्छे घराने तो ने, दोनों ही बहुत वधिया ने। तो मैं कन्फ्यूज जिहा हो गया। तो मैं पंडित जी को दक्षिणा दे के जो उठन लगा ना, तो मैनूं पंडित जी कहते पर तेन मैं एक गल दस्सां सतीश। मैं हाँ जी। कहते वैसे ना रूबी दे विच ही खूबी है। तो मैं उस वक्त जिहड़ा अपना धैया कर लिया कि मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा तो रूबी ही बनेगा। और यकीनन तौर के उत्ते मेरी लाइफ में इत्थों तक लैके आने वास्ते, क्योंकि रूबी की आदत है कि जे उन्हें कोई काम कहता है करना है तो मीनिंग करना है, जे उन्हें कहता काम नहीं होना तो यह मतलब नहीं होना, क्योंकि वो जिद नहीं, वो सच्ची सोच के उत्ते जिद होंगी है हमेशा ही। तो थैंक यू रूबी जी, तुसी मेरी लाइफ दे विच आए। और
बहुत अच्छियां, बहुत पॉजिटिविटी, और इन्नी पॉजिटिविटी मैं नहीं देख सकता किसी भी होर दे विच। और इदां दी दलेरी हर तरीके की आम तौर पर मूवमेंट जिहड़ी आ लेडीज़ विच नहीं भी हुंदियां कई वारी, लेकिन इन्हां दे विच जो दलेरी है ना मैनूं पता है हर तरीके दे नाल, चाहे वो इकनोमिकली होए चाहे फिजिकली होए। मोर देन इत्थों तक भी कि कई बारी कई स्टूडेंट्स का रात को 10 बजे भी फोन आ जाता सीगा ना, तो मैं कई बारी सुता हुंदा सीगा ते तां भी इन्हां ने कहना भी मैनूं इग्नोर नहीं करना। रात 10 बजे भी कई छोटिया आवाज़ां तो मैं क्या 6 स्टैंडर्ड दियां कई 7 स्टैंडर्ड दियां भी बच्चियां का रात को फोन आना, मैडम असीं ना ये वाले चैप्टर कर लिया तो हुण की करिए। तो रूबी ने उन्होंने कहना कि सवेरे ये वाले 6 सवाल नाल होर करके लैके आने। तो मैं देखदा सी डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन। स्कूल दे विच कोई भी काम होना, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे कोई एग्जाम, चाहे पेपर चैकिंग का, चाहे कोई भी सोशली चाहे नॉन सोशली किसी भी तरीके का जो काम है ना, उन्होंने करके जिन्नी देर तक उन्होंने खत्म नहीं करना उन्नी देर तक उन्होंने साह नहीं लेना। तो मैं एक बार तो फिर तो सारे अपने परिवार का धन्यवाद करदा, और ये गल जरूर करदा कि इहो जिहा लाइफ पार्टनर हर एक नूं मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब के नाल अपनी जिंदगी नूं सवारन वास्ते, मेरी जिंदगी नूं सवारन वास्ते रूबी जी तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू। और खास करके मैं थैंक यू इस करके भी कहना चाहुंदा कुलदीप कौर मैडम जी का। मैडम जी मेरा गल ध्यान नाल सुनो कि कहते कि किसी के पित्तल के कोल जे पारस जाता ना तो पित्तल भी सोना हो जाता है, तो जे सोने के कोल पारस चले जाए तो वह की हाल होंदा है। तुसी पारस हो तो तुसी जो रूबी नूं कीता है, मैं कहना तुहाडा बहुत बहुत तुहाडी मैनेजमेंट और तुहाडा जिहड़ा स्कूल का रुतबा जो तुसी संभाल के रखिया, असीं इह तो बहुत है। तो मैं इन्हां शब्दां नाल मैनूं प्रेम भैनी ने कहा कि मैनूं एक गाने के शब्द जरूर बोलने ने तुसी जी। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे जमाने की खुशी मांगी है, एक छोटी सी हंसी मेरे लब ने मांगी है, एक हल्की सी खुशी मेरे लब ने मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। थैंक यू टू ऑल and love you Ruby. Let us enjoy and join a new life in your this amazing world. और रूबी ने अपने लास्ट में जोड़े 2 शब्द जरूर सारे वास्ते कहने हैं, रूबी और उस तो बाद फिर लंच। थैंक यू। शब्द है ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने विषय पर पढ़ाना, बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने विषय पर पढ़ाना। 27 साल की गवर्नमेंट जॉब में 5 साल तालीबाग, 10 साल बस्ती बाबा खेल के बाद रैशनलाइजेशन में फिर आदर्श नगर स्कूल में मेरा जिंदगी का सफर बड़ा ही आनंदमय रहा। कभी इलेक्शन ड्यूटी, कभी एग्जाम ड्यूटी,
सेमिनार, एजुकेशनल टूर, पीटीएम, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लोहड़ी, फेयरवेल पार्टीज, मैच फेयर करते करते ये टाइम कैसे बीत गया मेरे को पता भी नहीं चला। बड़ा अच्छा लगता है मुझे प्रिंसिपल खुशदीप कौर मैडम की रहनुमाई में काम करना। उनका हर समय चमकता चेहरा, ना घबराना और ना ही घबराने देना, भगवान का रूप लगता है मेरे को। बड़ा अच्छा लगता है मुझे मंजीत मैडम के साथ स्कूटर पे पीछे बैठ के घर जाना, उनकी लीडरशिप में हाउस ड्यूटी करना, सुबह सुबह बच्चों की गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है। क्यूट स्वीता, कविता, जसरी, रितिका ने तो मुझे मेरी उम्र का एहसास ही नहीं होने दिया। पराठे, सलाद, पोहा बहुत याद आएगा। इन सब की सुंदर हैंडराइटिंग, पेंटिंग, मॉडल की प्रेपरेशन, कंप्यूटर वर्क बहुत याद आएगा। फॉरनर मीना मैडम के साथ हर पीरियड मन की बातें करना, 3 साल की क्लास इंचार्जशिप इकट्ठे करना, टी फंड मेंटेन करना, खुद भी इंजॉय करना और दूसरों को भी इंजॉय करवाना बड़ा अच्छा लगता है। नीरू मैडम तो स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके साथ कीर्तन किट्टी में आनंदमय होता है। बड़ा अच्छा लगता है क्यूटी रोजी की आंखों का टिमटिमाना। इसी कारण से उसको दोबारा से स्कूल में लेके आए। शरण मैम को खिलाने का बहुत मजा आता है। बड़ा अच्छा लगता है क्यूटी मनदीप मैडम का फराटेदार इंग्लिश बोलना, गरम गरम खाना खाना, सुंदर मजेदार बातें करना। बड़ा अच्छा लगता है रितु मैडम का कंप्यूटर काम में किसी को इनकार ना करना। कोई अच्छा भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, सुंदर तो मैंने ही लगना है, उनकी सबसे अच्छी वर्डिंग लगती है। मनदीप हिंदी वाले मैडम मैचिंग इयररिंग्स पहनना, लॉन्ग स्ट्रेट हेयर, उनके द्वारा अपने शब्दों में विशेष देना, मेरी बनाई खिचड़ी को पसंद करना बड़ा अच्छा लगता है। प्रेम मैडम के साथ तो सेम सब्जेक्ट मैथ्स होने के कारण जोड़ी दामन का साथ है। वो तो मेरे घर के भी पास है और दिल के भी पास है। बड़ा अच्छा लगता है नीतू मैडम के चुटकुले सुनना, उनके द्वारा मेरी न्याज बो की चुटनी पसंद करना, अपने मदर इन लॉ की तरह रिस्पॉन्सिबल और वेल मेंटेन्ड समझना। बड़ा अच्छा लगता है स्नेहलता मैडम के साथ बर्थडे एंजॉय करना। बड़ा अच्छा लगता है कमलजीत, उमा भारती मैडम, सुमन मैडम, रितु मैडम, कंचन मैम, गुरमिंदर मैडम के साथ टूर पर डांस करना, सेल्फी लेना, खूब एंजॉय करना, छोटी छोटी नोक झोंक करते रहना। बड़ा अच्छा लगता है रंजीत मैम की ड्राइंग और सिंप्लिसिटी। सरोज मैडम का मेरा फ्यूचर प्लान पूछना बड़ा अच्छा लगता है। ज्योति मैम का मेरा सीनियरिटी नंबर ढूंढ कर देना। अब आ जाओ जी साइंस डिपार्टमेंट की तरफ। सबसे मेन थी मनदीप मैडम, उनके डॉक्टर बेटे ने मेरा पोर्ट्रेट बना के मेरे से पहचान करवा दी। बड़ा अच्छा लगता है जॉर्जियस सिमरपाल मैम का स्टेज ऑर्गेनाइज करना, सब अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरे घर आना, हर बार उनकी क्लास को मैथ्स पढ़ाना और खुद को इंचार्ज समझना। क्यूट करमजीत का सुंदर स्माइलिंग इंटेलिजेंट चेहरा, उनका साइंस और मैथ्स दोनों में इंटरेस्ट लेना। रजनी मैम की बातें बहुत याद आएंगी। सुनील मैडम के सुंदर फिटिंग वाले सूट पहनना बड़े याद आएंगे। सीमा मैम, उनकी शायरी, प्रीति मैम का हग करना, प्रियंका मैम का प्रशंसा करना। सारे जेंट्स गगनदीप सर, सतेंद्र सर, सुरिंदर सर, राकेश सर, अंकुर सर, अविनाश, इकबाल कौर, स्वीटी, रजनी, राजू की चाय, सब कुछ बहुत याद आएगा मेरे को। इतना अच्छा है। सबसे पहले मैं अपने परमात्मा का भी आज बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ
कि जिन्होंने मेरे को इतनी अच्छी लाइफ दी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को इस तरह एक काबिल बनाया। उसके बाद मेरे जब शादी हुई तो जब मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ आई तो रियली लाइफ एंजॉयफुल बन गई। मदर इन लॉ फादर इन लॉ का बहुत ज़्यादा साथ रहा, खूब एंजॉय किया हमने लाइफ को। जब बड़ी बेटी की शादी हुई, भाभी जी भाई साहब को तो मैं इतना याद करती हूँ, परमात्मा वो वहाँ से देखते होंगे, यदि वो आज होते तो मेरे को रियली बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा उनको याद करती हूँ, वो मेरे को देख कर कितना खुश होते थे। जब छोटी बेटी की शादी की तो मेरे को इतने अच्छा साथ मिला है कि मेरे को कुछ महसूस ही नहीं होता। दोनों बेटों ने मेरे को इतना मान इज्जत दिया है कि मैं बता नहीं सकती। बेटियों ने मेरे को इतना मान इज्जत दिया है, मैं कहती हूँ कि क्या कहूँ उनके बारे में। सच्ची बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे मेरी दोतियाँ हैं जो नानी आओ आपका मेकअप करें, नानी आओ आपके साथ लूडो खेलें, इतना एंजॉय करवाती हैं। इसके बाद भी मेरे को मेरे किटी मेंबर्स रियली बहुत एंजॉय करवाते भी थे और अब उन्होंने ही मेरा ध्यान रखना है, उन्होंने बहुत एंजॉयमेंट करवानी है। हम मेरी शक्ल हरजोत मैडम रियली ऐसे लगता है कि हम तो दोनों एक ही हैं। क्लास में एक पढ़ा के जाता था, दूसरे को कहते थे अभी तो आप पढ़ा के गए हो, अब फिर आगे। ऐसा था हमारा साथ। रियली बहुत एंजॉय किया। परमात्मा से यही मांगती हूँ कि आगे से भी अपनी सोशली लाइफ को इतना एंजॉय करती रहूँ और परमात्मा मेरे से अच्छे अच्छे काम करवाते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर। थैंक यू, वेलकम। मीना मैडम जी ਜਿਹੜੇ कि लंच ਜਿਹੜਾ ਉਹ रूबी ਦੇ ਨਾਲ ही करते थे। सभी आए हुए मेहमानों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद कहती हूँ और नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मैं पहले तो हमने ये डिसाइड किया था भी हम लोग जो हमारे स्कूल की पार्टी है उसमें बोलेंगे, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि रूबी मैम का और मेरा चोली दामन का साथ है। हमने तीन साल कह लो हमने इकट्ठे इंचार्जशिप की है। जब भी कोई काम होता था हम इकट्ठे मिल बांट के काम करते थे और कोरोना के टाइम पे हमने घर बैठ के एक दूसरे को फोन पे कांटेक्ट करके हमने स्कूल के काम किए थे। इनको संबोधित करते हुए मैं कुछ लाइनें बोल रही हूँ, अगर आपको सभी को अच्छी लगे तो प्लीज तालियां जरूर बजाना। माननीय रूबी मैम के लिए मैं चंद लाइनें संबोधन करने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो प्लीज ताली जरूर बजा देना। ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये रूबी मैम आपकी चुलबुली जो मंद मुस्कान है, आपकी जो चुलबुली मुस्कान है वे कभी रिटायर नहीं होगी। आज के बाद आपके लिए क्या रिटायर होगा, वो है रिटायर हो रही है आपके हिसाब विषय की जिम्मेदारियां, रिटायर हो रही है आपके हिसाब विषय की जिम्मेवारियां, रिटायर हो रही है आपके सुबह की अलार्म घंटी, रिटायर हो रही है आपकी सभी CL, ML, EL, रिटायर हो रहे हैं आपके समय पर कामों को निपटाने की जद्दोजहद। ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती। ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। अब आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्या मिलने जा रहा है वो बताऊंगी। अब आपको मिलने वाली है आपको एक नई सुबह जिसमें होगी एक अलमस्त नींद। आपको मिलने जा रही है एक नई सुबह जिसमें मिलेगी आपको अलमस्त नींद। लाइफ होगी विदाउट टेंशन, लाइफ होगी विदाउट टेंशन और रजाई में मिलेगी आपको फुल पेंशन।
रजाई में मिलेगी आपको फुल पेंशन। ये जिंदगी है, जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान है, मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। और ये भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि रूपी मैम जो आपकी ये चुलबुली मुस्कान है, ये सदा मुस्काने वाला चेहरा, ये कभी भी रिटायर नहीं होगा। धन्यवाद। थैंक यू बीना मैडम, थैंक यू। रियली हजे कईयां दे बारे मैं दस्या नहीं इत्थे। मेरा ब्रदर, मेरे कजन्स, मेरे मासी जी जिन्होंने ने मेरी इन्नी हेल्प की है, मेरे जेठ साहब, मेरी ननान दे बच्चे, ते कई आ भी नहीं सके। बहुत ही खुशी हुई कि तुसी इस पार्टी ते मेरा साथ दिता। रियली आई एंजॉय। डिंपल मैडम मेरे भाभी दे नाल तां मेरियां स्कूल दीयां गल्लां ही चलदियां रहिंदियां। मैं वो डीएवी स्कूल च पढ़ाते हैं तो मैं अपने स्कूल दीयां गल्लां तो इलावा होर कोई गल नहीं करती। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल। जे घंटा गल करनी है तो मेरा ही स्कूल बड़ा वधिया है। बस हर एक नाल मेरे को यही लगता, हर एक नाल मेरे ख्याल मैं यही कहनी है कि साडे स्कूल वर्गा कोई स्कूल नहीं है। रियली खूब इंजॉय किया ते आने वाली जिंदगी च भी खूब इंजॉय करांगे। थैंक यू। लेट अस जॉइन द लंच प्लीज। डांस करना जिन्होंने आ जाओ।